ملاقات ہے. ادھر خود اعلان فرما دیا، فرمایا لوگوں میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو، آج کی بعد زیارت نہ کر سکو گے، میری بات سن لو، میری بات اپنے دل میں لکھ لو، کلمہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا، میں یہ قرآن کریم تمہارے سپرد امانت کے طور پہ کر رہا ہوں، کل قیامت میں تم سے واپس لے لوں گا. سارے صحابہ چاروں طرف سے اکٹھے ہیں، مجمع بنا ہوا ہے. ادھر منبر پہ تشریف فرما ہے، خود ہی فرمانے لگی الوداع الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم، الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم. میرا آخری وقت ہے، میری تمہاری آخری ملاقات ہے، میری بات یاد کر لو. سارے دیوانے حیران ہو گئے، اور بھی پریشانی بڑھ گئی، لوگ قریب آ گیا بچھڑنے کا معاملہ. ہم نے اولاد کو قیمہ بنتا دیکھا، پرواہ نہ کی، ہمارے بچوں کو ظالموں نے نیزے کی نوک پہ لٹکا دیا، پرواہ نہ کی، وطن چھڑا دیا، پرواہ نہ کی، 8 دن پانی کی بوند نہ ملی، پرواہ نہ کی، مہینوں مہینوں روٹی کا ٹکڑا نہ دیکھا، پرواہ نہ کی، کوئی پرواہ نہیں کی. آج یہ کیا سلسلہ شروع ہوا؟ سارے صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہتے ہیں کس طرح سے کیوں کر، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم، کس طرح جئیں گے، کس طرح گزارا کریں گے. آقا ہم نے تو بھوک بجھائی، پیاس بجھائی، سب کچھ تجھ پہ قربان کر دیا تھا. حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، پھر بے ہوشی طاری ہے. اللہ غنی، عائشہ صدیقہ تیرا کتنا اونچا کمال پروردگار نے کر دیا، کتنا اونچا تیرا نام کر دیا. انصاف دیکھو نبی کا. پھر اپنے یہاں بھی میں بھی اور آپ بھی ہاتھ ماریں، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آخر ہمارا کیا بنے گا. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا. جتنی بھی ہماری مائیں تھیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، ان کی گھر والیاں ساری تمہاری مائیں ہیں. امہاتہم تمام کے تمام تمہاری مائیں ہیں. اللہ غنی، سیدہ ام سلمہ، سیدہ حفصہ، سیدہ جویریہ، سیدہ زینب، سیدہ صفیہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ساری ہماری ماؤں کو جمع کر کے فرمایا تم تمام کے تمام مجھے اجازت دے دو، میں اپنا آخری دل، اپنے آخری بیماری کا دل عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں. تم اجازت دو مجھے، بے انصافی نہ ہو جائے، خدا کے یہاں سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے. امام الانبیاء ڈر رہے ہیں، ہم قبر میں جا کے ڈریں گے انشاءاللہ. ساری گھر والیوں کو اکٹھا کر کے اجازت مانگی جا رہی ہے، سب نے اجازت دے دی. اصل میں جنت الفردوس کا انتظام ہو رہا ہے.
जिस जगह हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह मियां ने इकट्ठा देखा, बिस्तर में देखा, कुरान उतरते देखा, उस हुजरे पे इतना प्यार आ गया, उसी को जन्नतुल फिरदौस बना दिया। और फिर बात बढ़ी, जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान बैठी हैं, जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान बैठी हैं, बड़ी तकलीफ है, बड़ा शिद्दत का बुखार है, बेहोशी भी है। फरमाया मेरी आयशा ठंडे पानी का प्याला ले आ। समझी मेरे महबूब को प्यास लगी होगी, दौड़कर पानी का प्याला ले आई, इशारा फरमाया यहां रख दो, रख दिया गया। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मेरा कलेजा फटने लगा। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मेरा जिगर फटने लगा। हमने आंखों से देखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस रहमत वाला हाथ उस पानी के प्याले में भिगो कर अपने चेहरे अनवर पे छींटे मारने लगे। यूं चेहरे अनवर को ठंडा कर रहे हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मैंने अर्ज़ कर दिया मेरे आका ये घबराहट कैसी, ये परेशानी कैसी, ये तकलीफ कैसी, ये छींटे कैसे। फरमाया मेरी आयशा तू नहीं जानती मौत कितनी घबराहट वाली चीज है। मजात सकरुल मौत बिल हक, कुरान कहता है कि मौत की सख्ती हक है। जनाबे आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर की तकलीफ को जब आंखों से देख लिया फिर मेरे दिल में ये बात कभी आई ही नहीं कि और किसी को तकलीफ हो या ना हो। और मुकद्दर की बाजी है सारी, अल्लाह पाक जिसकी तकदीर इस तरह से बना दे कौन है पीछे हटाने वाला। बिल्कुल आखिरी वक्त है। फरमाया आयशा मिसवाक ला के दे, मिसवाक ला के दी गई। फरमाया अपने मुंह में चबा के दे, अपने मुंह में चबा के दे, नरम करके दे। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चबा दी, नरम कर दी अपने मुंह में चबाकर। तवज्जो करना, ये नहीं फरमाया कि इसे अब धो के दे। हज़रत आयशा ने जो अपने मुंह में मिसवाक चबाई थी, काली कमली वाले ने उस मिसवाक को यूं ही अपने मुंह मुबारक में फेर लिया, साबित ये कर दिया लोगों आयशा को कुछ ना कहना, मुझे इतनी प्यारी है, मुझे इतनी प्यारी लगती है कि मैं आखिरी वक्त में आयशा का लुआब अपने मुंह में लेके चलाऊं। आज लोग 4 वर्के तारीख की किताब की पढ़कर सहाबा किराम के फैसले शुरू कर देते हैं। अपने ईमान को बचाओ। खबरदार नबी के घर वालों के बारे में कभी गलत ख्याल ना करना। इसलिए कानून की बात सुनो। नबी जब कुरान कहता वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर सांस नहीं लेता, नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर हाथ को हरकत नहीं देता, नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर कदम नहीं उठाता, कदम नहीं रखता। तो नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर रिश्ते भी नहीं करता। तमाम दुनिया के रिश्ते माँ करती है, बाप करते हैं, मामे करते हैं, नाने करते हैं, चचे करते हैं, नबी का रिश्ता खुदा करता है। अल्लाह की इजाजत के बगैर नबी का कोई रिश्ता नहीं होता। तो हज़रत आयशा का रिश्ता खुदा ने किया और यह अजमत खुदा ने दी है कि आखिरी मर्तबा मिसवाक चबा करके देना। वरना हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी तो यहीं पर मौजूद थी।
इसके बाद जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है मैं भी बैठी थी, बड़ी परेशान थी। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी परेशान थी, माथे पे पसीने आते थे जाते थे। इतनी देर में दस्तक हुई, दरवाजा खटका, किसी ने आवाज दी हल अदखलुका फिल बैत, क्या मुझे घर में आने की इजाजत है? हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अब्बा के गम की वजह से निहायत परेशान थी, निहायत मुज़महिल थी, निहायत दिल दुखा हुआ था, बस जुबान से ये बात निकल गई, और देहाती कहीं के ओ गवार, मेरा अब्बा बेहोश है, तुझे इजाजतों की पड़ी हुई है। सरकार को होश आ गया, ये जवाब सुन लिया अपनी लख्ते जिगर का। रहमत वाला हाथ अपनी बेटी के सीने पर रखते हुए फरमाया बेटी यूं ना कहो, ये देहाती नहीं, ये गंवार नहीं, ये पागल नहीं, ये तो इजराइल है, ये तो तेरे अब्बा का मकाम है कि इजाजत लेके आ रहा है। इसने तो आज तक कभी किसी से इजाजत मांगी ही नहीं, कभी भी किसी से इजाजत नहीं ली। ये इकराम है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। तशरीफ ले आए, और ये जो मामला हो रहा है ना, जो कुछ मैं बतला रहा हूं याद करने के लिए अर्ज कर दूं, ये जो कुछ मैं आज तुम्हें बतला रहा हूं, चूंकि रबीउल अव्वल का महीना खत्म हो रहा है, आज उसका आखिरी जुमा है, इसलिए मैं इस उन्वान को खत्म करना चाहता हूं। और मतलब मेरा क्या है, ये जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूं, सारी दुनिया के उलमा का इत्तिफाक है, ये सब कुछ 12 रबीउल अव्वल को हो रहा है। ये इजराइल का आना और ये बीमारी और ये परेशानी और ये पसीने और ये हजरत आयशा का मिसवाक को चबा करके देना और फातिमा ज़हरा को परेशान होना, ये 12 रबीउल अव्वल को हो रहा है सब कुछ। जिस दिन तू ढोल बजाता है, जिस दिन तूने 1400 साल के बाद नाचने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, तेरे बेटे का आखिरी वक्त हो, बराबर वाला ढोल बजा के दिखाए, तेरे कलेजे पे चोट लगेगी। और जालिम मेरा क्या हाल है, और तुमने ये क्या शुरू किया है? हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी इन्हें कुछ ना कहो, ये तो वो हैं जो बच्चों को यतीम बना दें, ये तो वो हैं जो सुहाग उजाड़ के रख दें, ये वो है जो चलते चलाते हंसते खेलते घरों को की तबाही फेर दें। इजराइल है। तशरीफ ले आए, सलाम पहुंचाया, सीरत की किताबों में है अल्लाह पाक का सलाम पहुंचाया। मैं हाजिर हो गया हूं, इजाजत हो? जी हाजिर हो, तशरीफ ले आओ। ठीक है। अल्लाह मियां ने सलाम पहुंचाया, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबा सलाम कबूल फरमाया। सीरत की एक किताब में है कि हजरत जिब्रील भी साथ साथ तशरीफ ले आए। काली कमली वाले अल्लाह पाक आपकी मर्जी के मुताबिक पूछना चाहते हैं कि जन्नत के कौन से दर्जे में मदार बनाया जाए। फरमाया जिब्रील तुम मेरा मजार जन्नत में बना दोगे, मेरा बिलाल कहां जाएगा, मेरा सुहैल कहां जाएगा, मेरा सलमान फारसी कहां जाएगा? और जिनके चमड़े उधेड़ दिए गए, जिनकी आंखें निकाल दी गई, जिनको अंगारों पे साड़ा जलाया गया, जिनकी पसलियां तोड़ दी गई, वो कहां जाएंगे? यहां बनाओ मदीने में। सीरत की किताबों में है कि रूह मुबारक जब कफस से अंसरी से अलग करने लगा इजराइल, आपने फरमाया इजराइल मुझे तकलीफ हो रही है। अर्ज किया मेरी क्या मजाल है मैं आपको तकलीफ दूं, मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं, मेरी क्या जुर्रत है, मेरी क्या मजाल है? फरमाया तेरा तकलीफ देने का कोई प्रोग्राम नहीं, इरादा नहीं, जुर्रत नहीं, और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। ओ इजराइल उम्मत के जिन लोगों को तू तकलीफ देगा, अज़ाब देगा, उनका क्या हाल बनेगा? मेरी आरज़ू है, मेरी हसरत है, मेरी तमन्ना
رہا ہے ساری امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے. جو تکلیف تو نے ساری امت کو دینی ہے وہ آج میرے اوپر ختم کر لے. ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، وہ کس وقت میں تجھے یاد کر رہے ہیں جبکہ روح مبارک جسم سے الگ ہو رہی ہے. ظالم آپ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹھی میں یاد نہیں کرتے، بنگلے میں یاد نہیں کرتے، ایئر کنڈیشن میں یاد نہیں کرتے، پنکھوں کے نیچے یاد نہیں کرتے، ٹھنڈی ہوا میں یاد نہیں کرتے، رات کو یاد نہیں کرتے، دن کو یاد نہیں کرتے، اور آقا امت کو کس وقت یاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ. تو سرکار کو شادی میں یاد نہیں کرتا کہ میرے نبی کا شادی کے موقع پہ کیا حکم ہے.